गुड मॉर्निंग बच्चों. We are studying the chemical kinetics and we have discussed which one? Rate of the reaction. Rate of the reaction is change in concentration upon change in time. Average rate of the reaction, the rate of the reaction between the two time interval. Instantaneous the rate of reaction, the rate of reaction at any instant of the time, at one particular time. And then we have discussed about the factors affecting the rate of the reaction. 6 factors were there and we have discussed those also. Then we have discussed the rate expression. In the last of the rate expression, we have a term that was the order of reaction, बच्चों. That was order of reaction. So in this video we will discuss about the rate law expression, order of reaction and rate constant. 3 things we will discuss in this video. Let we have A mole of A plus B mole of B change into the product. Clear? Then rate law expression according to the rate law equation. According to the rate law equation, if this one is the complex reaction, rate is equal to concentration of the reactant raised to power alpha, concentration of the B raised to power beta, where alpha and beta, alpha plus beta is called order of reaction. What is this? Order of reaction. Alpha plus beta is called order of the reaction. And these are the experimental determined values of a complex reaction on which the rate of any reaction actually depends. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में हुई थी, अलग अलग स्टेप्स का अलग अलग रेट था. स्लोवेस्ट स्टेप सबसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था. तो अल्फा और बीटा को हमने पावर में लेके गए थे, जो कि एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट डिटरमाइंड वैल्यूज हैं जिन पे किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है. और उसी को क्या कहते हैं हम, उनके सम को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इट में बी 0, 1, 2, 3, इवन इन फ्रैक्शन 1/2, 3/2, 5/2. क्लियर? Then according to the rate law equation, rate is equal to rate constant into with this. This one is the concentration, this one is the concentration. We know अगर बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी. तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मान लिया मैंने किसके इक्वल, एन के इक्वल. तो कंसंट्रेशन दोनों क्या है, कंसंट्रेशन है, तो पावर्स क्या होगी, ऐड. तो कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, एन. रेट बराबर क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. This is the representation for the nth order of the reaction. Nth order of the reaction. The rate is dx by dt. Suppose we have x. X is the product. So the change in concentration of the product upon the change in time. We have x is amount of the product. So the change in concentration upon change in time is equal to k c raised to power n. If we want to calculate the value of the k, then dx by dt 1 upon c raised to power n. This is the change in concentration, very small change in concentration, that means concentration raised to power 1. Here we have nth power, so 1 power will be cancelled out and it becomes n minus 1. 1 by dt c raised to power n minus 1. जब हम dt को इस c को ऊपर लेके गए क्या होगा, dt इनवर्स c raised to power 1 minus n, c raised to power 1 minus n, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा. क्या होगा, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स. कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन. मोल की पावर कितनी होगी, 1 माइनस एन. लीटर क्या है, नीचे 1 माइनस एन हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1. तो क्या हो गया, यूनिट ऑफ द के हो गया क्या, सेकंड इनवर्स मोल 1 माइनस एन, लीटर एन माइनस 1. एन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सपोज for the zero order reaction and value of the n will be 0. So the unit of the rate of constant becomes second inverse mole per liter. N is 0. Mole per liter per second, and this is the same unit as of the rate of the reaction, mole per liter per second. रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वही रेट कांस्टेंट का यूनिट है जीरो ऑर्डर के लिए. इस चीज को नोट करें, जीरो ऑर्डर के लिए सिर्फ
मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 माइनस 1 0 समथिंग रेज्ड टू पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 समथिंग रेज्ड टू पावर 0 1, क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो गया? सेकंड इनवर्स हो गया। क्या? यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट 2, तो क्या हो जाएगा -1 1, सेकंड इनवर्स मोल -1 लीटर 1, अगर ऑर्डर कितना होगा 3 तो क्या पुट करूंगा 3, तो क्या हो जाएगा -2 मोल -2 लीटर स्केयर सेकंड इनवर्स। तो हम यहां से यूनिट निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में था। अगर हमारे पास में क्या गैसेस प्रोडक्ट सॉरी गैसेस रिएक्टेंट हो हमारे पास में, तो गैसेस रिएक्टेंट में क्या होगा? यहाँ पे बस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर की पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस एन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? के का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स पी की पावर 1 माइनस एन, पी की पावर 1 माइनस एन। तो यहां से हम डायमेंशन निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे किसकी? के की। आगे बढ़िएगा। अब आता के, वैल्यू ऑफ द के रेट कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू डिफरेंट होगा, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। आई बात समझ में? अगर कोई स्लोअर रिएक्शन हो तो उसका के फास्ट होगा। क्लियर? वैल्यू ऑफ द के इज रेट कांस्टेंट। सी और के एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो के का वैल्यू चेंज नहीं होगा, के विल रिमेन सेम। के और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी रिएक्शन का अगर मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट, के एंड के आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। मैंने बताया रिएक्शन फास्ट होगी तो के का वैल्यू स्लो होगा। रिएक्शन सॉरी हाँ ठीक है, रिएक्शन अगर क्या होगा? रिएक्शन का रेट फास्ट होगा तो के की वैल्यू स्लोवर होगी। रिएक्शन का रेट अगर स्लो है तो के का वैल्यू ज्यादा होगा। कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू। वो हम जब कैटलिस्ट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द कैटलिस्ट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द के। सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, दीज आर द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। अगर मान लीजिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मैं इसमें पुटअप करता हूं, देखना। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा? के सी की पावर 0, के सी की पावर 0। अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूं तो क्या रेट चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कुछ भी करो उसकी पावर 0 है और वी नो समथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो इट विल ऑलवेज रिमेन्स यूनिटी। अगर ये 1 होगा तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। इस पॉइंट को ध्यान करें, जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन चेंज करने पर चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ और मैंने कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम चेंज हो जाएगा? 2 टाइम्स। 2 सी से मैंने क्या कर दिया? 2c, 2c रेज्ड टू पावर कितना? 1, 2 रेज्ड टू पावर 1 2, तो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल वाले से डबल हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं 3 टाइम्स कर दूंगा तो रेट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर में 3 टाइम बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेगा। फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर मैंने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? डबल, तो बोलो क्या होगा? इनिशियल क्या था? के सी रेज्ड टू पावर 2, तो क्या हो जाएगा? यहां से के सी रेज्ड टू पावर 2, 2c कर दिया मैंने, तो 2 रेज्ड टू पावर 4, 4k सी की पावर 2, तो इनिशियल वाले से ये कितने टाइम हुआ? 4 टाइम्स। 2 का स्केयर टाइम्स चेंज हो गया। इसमें क्या होगा? कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? 3 टाइम्स। अगर मैं क्या कर दूं? कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम होगा? 2 रेज्ड पावर क्यूब टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स रेट चेंज हो जाएगा। तो बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जीरो ऑर्डर में सेम होगा, फर्स्ट ऑर्डर में जितने टाइम कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा उतने टाइम चेंज होगा, सेकेंड ऑर्डर में स्केयर टाइम चेंज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, और थर्ड ऑर्डर में जितना टाइम में बढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा उसका क्यूब टाइम चेंज हो जाएगा। क्या? रेट ऑफ द रिएक्शन। सो इन दिस वीडियो इंक्लूड्स रेट एक्सप्रेशन, unit of the rate constant, characteristics of the rate constant, and how the rate of reaction changed by changing the concentration of the different order of reaction. Clear बच्चों? This is all for today. Thank you.